ہمارے گاؤں میں ایک ایسی خاموش رسم چلی آ رہی تھی جس کا بوجھ صرف لڑکیوں کے حصے میں آتا تھا۔ ہر لڑکی کی پہلی ماہواری کے بعد اس پر ایک رسم لازم سمجھی جاتی جسے لوگ روایت اور عزت کا نام دیتے تھے۔ اس موقع پر تحفے، کپڑے اور خوشی کے مظاہر کیے جاتے جیسے کوئی تہوار ہو۔ میں بھی انہی باتوں میں خوش تھی۔ مجھے لگا اب میری باری ہے، اب میں بھی سب کی توجہ کا مرکز بنوں گی۔ چند دن بعد مجھے غسل دیا گیا اور عورتوں کی جھرمٹ میں دائی کے گھر لے جایا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، اندر صرف اماں اور دائی تھی۔ مجھے ایک چارپائی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ میری روح اس لمحے کانپ اٹھی جب میں نے دائی کے ہاتھ میں چمکتا ہوا چاقو دیکھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ رسم نہیں، میری زندگی کا سب سے خوفناک امتحان ہے۔ میں فطرت کی عطا کی ہوئی ایک نفیس تصویر تھی۔ میرا مزاج نرمی اور نزاکت سے بنا ہوا تھا، اور میری موجودگی میں ایک ایسی کشش تھی جو دل کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ لیتی۔ میرا چہرہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت نے سکون کے لمحوں میں اسے سنوارا ہو۔ نہ نقشوں میں کمی، نہ رنگت پر کوئی سایہ۔ میرے بال گھنے اور سیاہ تھے، لمبے لٹوں کی صورت شانوں پر لہراتے رہتے، اور میری مسکراہٹ میں ایک خاموشی اعتماد چھپا تھا۔ ہونٹ نازک اور نرم جیسے پھول کی پنکھڑیوں نے لمس سینک لیا ہو۔ آنکھیں گہری اور وسیع تھی جن میں خوابوں کی ایک دنیا آباد رہتی۔ دیکھنے والا ٹہر جاتا جیسے وقت نے ذرا سا وقفہ لے لیا ہو۔ میری انگلیاں باریک اور متوازن تھی، گویا کسی ماہر فنکر نے ناپ تول کر تراشی ہو۔ ہاتھ اور پاؤں میں ایک شاہانہ نفاست تھی، جیسے یہ سب کے خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہو۔ اس لیے مجھے دل نشین کہا جاتا تھا، کیونکہ میری خوبصورتی محض دکھاوے کی نہیں، دل تک اترنے والی تھی۔ میرا چرچا دور دور تک تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ایسا حسن مدتوں بعد نظر آتا ہے، مگر تقدیر نے میرے لیے وہ راستہ چنا جو دیکھنے میں سادہ تھا۔ میری شادی جس شخص سے ہوئی اس کا نام نصیر اللہ تھا۔ وہ نہ صورت میں نمایاں تھا اور نہ ہی خد و خامت میں کوئی خاص امتیاز رکھتا تھا، بس ایک عام سا وجود جس کے ساتھ میری غیر معمولی کہانی بن گئی۔ اس کا وجود بے ڈھنگا اور بوجھل سا تھا۔ جسم کے ساخت میں سستی جھلکتی تھی، پیٹ ہمیشہ آگے کو نکلا رہتا، اور سر کی ویرانی اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی لاپرواہی کی کہانی سناتی تھی۔ جب ہم دونوں ایک ساتھ دکھائی دیتے تو لوگ بے اختیار ٹہر جاتے، نظریں ٹک جاتی، اور خاموش سوال فضا میں معلق رہتا۔ بہت سے چہروں پر صاف لکھا ہوتا کہ اتنی حسین عورت کا ایسا جوڑ کیسے بن گیا۔ میں مگر خاموش رہتی، نہ کسی نگاہ کا جواب دیتی، نہ کسی سوال کا۔ اس خاموشی کے پیچھے ایک ہی سچ تھا، اس کی مضبوط آمدنی، وہ سہولت جس نے ہر اعتراض پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میرے گھر والوں نے بھی یہی سمجھا کہ زندگی میں سب سے بڑی ڈھال پیسہ ہی ہوتا ہے، اور اسی یقین کے سہارے فیصلے کر لیے گئے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، مگر حالات آہستہ آہستہ کروٹ لینے لگی۔ وہی شخص جس کے ساتھ میرا مستقبل باندھ دیا گیا تھا اب مجھے جوڑ دینے کی باتیں کرنے لگا۔ کبھی وہ کہتا کہ تم بیوی کہلانے کے لائق نہیں، تو میرا دل ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جب وہ یہ الزام دہراتا کہ تم نے مجھے نامرد بنا دیا ہے تو میری روح تک لرز اٹھتی۔ یہ لفظ نہیں تھے، زخم تھے، ایسے زخم جو دکھائی نہیں دیتے مگر اندر سب کچھ توڑ دیتے ہیں۔ میری خاموشی جو کبھی برداشت کی علامت تھی اب چیخ بننے لگی تھی۔ میں اکثر خود سے سوال کرتی کہ میں اس موڑ تک کیسے پہنچی، اور میرے حصے میں یہ اذیت کیوں لکھی گئی۔ وہ مجھے اتنے شفاق جملے کیوں سناتا تھا، اور کیا واقعی ان سب کا بوجھ میرے ہی کندھوں پر آتا ہے؟ یہ سوال مجھے دن رات کچوکی لگاتے رہے۔ جو قصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ کوئی عام واقعہ نہیں، نہ ہی روزمرہ کی کہانی ہے۔ یہ ان کڑوی حقیقتوں میں سے ایک ہے جن پر عموماً خاموشی کی دبیش زیادہ ڈال دی جاتی ہے تاکہ سب کچھ معمول دکھائی دے، مگر میں نے اس خاموش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پردہ ہٹے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی کیسے دردناک سانحات جنم لیتے ہیں، ایسے حادثے جو دل کے ریشے ریشے کر دیتے ہیں اور روح پر گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ میں خود اس کہانی کی زندہ مثال ہوں، میری ذات ہی اس کی سچی گواہ ہے۔ میری داستان خوشیوں اور خیخخوں سے آراستہ نہیں،
ये आंसुओं, सब्र, आजमाओं, लम्हों और तलख सच्चाइयों से तराशी गई है। इस वक्त मैं उम्र के इस मोड़ पर थी जहां बचपन पीछे रह जाता है और जवानी पूरी तरह सामने नहीं आती। वो नाजुक मरहला जहां दिन खेल कूद में ढलते हैं और रातें ख्वाबों के सहारे गुजरती हैं। मैं नामुकम्मिल बच्ची रही थी, ना ही पूरी तरह जवान बन पाई थी, बस एक कमज़ोर सी लकीर पर खड़ी थी जिसके दोनों तरफ अंदेशे ही अंदेशे थे। मेरे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दीलियां नमूदार हो रही थी जो वक्त के साथ आती हैं, मगर मेरा दिल अब भी बचपन के मासूम दुनिया में अटका हुआ था। खिलौने और गुड़ियों से मेरी वाबस्तगी वैसी ही थी जैसे कल की बात हो। इन्हीं दिनों मैंने एक बात महसूस की। मेरी सहेली समीना अचानक नजर आना बंद हो गई थी। समीना जो मुझसे चंद बरस बड़ी थी, कई दिनों से खेल के मैदान में दिखाई नहीं दी। न इसकी हंसी सुनाई देती, न दौड़ते कदमों की आहट। इसका आना जाना यूं थम गया था जैसे किसी ने एकदम से सब रास्ते बंद कर दिए हों। वही समीना जो रोज हमारे साथ छुपन छुपाई खेलती, हर खेल में आगे रहती और सबको हंसाती, अचानक कहीं गुम हो गई थी, जैसे जमीन ने इसे अपने अंदर समो लिया हो। मेरी बेचैनी बढ़ती चली गई। आखिर एक दिन मैं खुद इसके घर की तरफ चल पड़ी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इसकी माँ सामने आई। मैंने घबराए हुए लहजे में पूछा, आंटी समीना कहाँ है? कई दिनों से बाहर नहीं आई, ना हमारे साथ खेलने आती है। सब बच्चे इसे याद कर रहे हैं। इनकी आंखों में एक लम्हे के लिए ठहराव आया, फिर उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज मेरे दिल में देर तक रह गई। वो बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि कुछ न कुछ ज़रूर है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है। उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया कि वो बाहर खेलने नहीं आएगी क्योंकि अब इसे बड़ी समझ लिया गया है। ये सुनकर मैं साकित रह गई। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला कि वो अचानक बड़ी कैसे हो सकती है। वो तो खद में भी मुझसे कम थी। चंद ही दिन पहले मैंने इसे दूर से देखा था। वो मुझे वैसी ही लगी थी जैसे हमेशा होती थी, न चाल में फर्क, न चेहरे पर कोई बदलाव। इसी आसना में मेरी निगाह अंदर के सहन की तरफ पड़ी। एक पल को मैंने समीना को देखा, हमारी नजरें मिली, मगर अगले ही लम्हे इसने फौरन अपना चेहरा छुपा लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे नहीं, किसी छुपी हुई अजियत से नजरें चुरा रही हो। इस लम्हे मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ उतर आया, ऐसा खौफ जिसकी वजह मैं नहीं जानती थी, मगर इसके सर्द लहर देर तक साथ रही। 2 दिन गुजरे तो अम्मा ने अलमारी खोली और एक नया जोड़ा निकाला। रंग और कपड़ा देखकर मैं खुश हो गई और फौरन पूछ बैठी कि ये किस मौके के लिए है। अम्मा ने बताया कि हम समीना के घर जा रहे हैं, वहाँ एक मुख्तसर सी तकरीब रखी गई है। मैंने मासूमियत से पूछा कि कैसी तकरीब? अम्मा ने बस इतना कहा कि अब वो बड़ी हो गई है। इन अल्फाज में ऐसी संजीदगी थी जिसने मेरी खुशी को खामोश कर दिया और मेरे दिल में सवालों की एक लंबी कतार लगा दी। अम्मा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये तकरीब इसी खुशी में रखी गई है। मैंने हैरत से दोहरा दिया, मगर वो तो मुझे बड़ी नहीं लगी थी। इस पर अम्मा ने एक ऐसा खैखा लगाया जो मेरे दिल को अच्छा न लगा। इस हंसी में कुछ अनकहा, कुछ छुपा हुआ था। वो बोली, जब तुम खुद बड़ी हो जाओगी ना, तब सब समझ आ जाएगा। मेरे मासूम दिल ने बात को सीधा लिया। मैंने खुशी से कहा कि अगर बड़ा होना पर तकरीब होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी कि हाँ, और हम इस मौके पर तोहफा भी लेकर जाएंगे। यह सुनकर मेरी खुशी और बढ़ गई। मैंने फौरन कह दिया कि अगर तोहफे भी मिलते हैं तो बड़ा होना वाकई बहुत अच्छा लगता है। मैंने सादगी से यह भी याद दिलाया कि समीना को कपड़ों का बड़ा शौक है। मैंने तजवीज़ दी कि क्यों ना हम इसके लिए एक नया जोड़ा ले लें, ऐसा जो वो पहनकर मुस्कुरा सके। अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर हिला दिया, मगर इनके आंखों में वो चमक न थी जो आम खुशियों के साथ आती है। हम एक ऐसे छोटे से गांव में रहते थे जो वक्त की दौड़ से बहुत पीछे रह गया था। वहाँ जिंदगी सदियों पुरानी तस्वीरात के सहारे चलती थी और तब्दीली के लिए जगह बहुत कम थी। कुछ घरों ने तो कभी टीवी की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी थी। मगर हमारा गांव अब भी इन्हीं रस्मों और सोचों में जकड़ा हुआ था। मगर हमारा गांव वही का वही रुका हुआ था, जैसे वक्त इसकी दहलीज पर आकर ठहर गया हो।
यहाँ बेटियों को चार दीवारी के अंदर समेट कर रखा जाता है और इन पर ऐसी कड़ी पाबंदियां आयद थी जिनका तस्वुर भी दिल को बोझल कर देता। कहा जाता था कि लड़कियों को अंडा नहीं खिलाना चाहिए, इन्हें गर्म चीजें नहीं देनी चाहिए। डर ये था कि कहीं वो वक्त से पहले जवान न हो जाए, गोया जवानी कोई बीमारी हो या कोई खता। हम इन्हीं बातों और रौनी नसीहतों के दरमियान बड़े हो रहे थे। हमें रोशनी दिखाई ही नहीं गई थी, इसलिए अंधेरे से खौफ भी महसूस न होता था। जो कुछ था वही मामूल समझ लिया गया था। समीना के लिए जोड़ा खरीदने हम बाजार गए और मुकर्ररा वक्त पर इसके घर पहुंचे। अंदर कदम रखते ही मंजर ने हमें चौंका दिया। घर को खूब सजा दिया गया था। दीवारों पर रंग बिरंगे पर्दे लटक रहे थे। फर्श पर चमकती हुई चांदनी बिछाई गई थी। औरतें बन संवर कर आई थी। गीत गूंज रहे थे और फिजा शोरों मिसरा से भरी हुई थी। हर हाथ में कोई ना कोई तोहफा था। हर चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी, जैसे कोई खुशी का त्यौहार हो। मगर इस सबके बीच एक बात ऐसी थी जो हद दर्जा नुमाया थी। यह खामोश जो खैखों के शोर में भी सुनाई दे रही थी और जिसने मेरे दिल को बेनाम सा खटका दे दिया। इस इज्तिमा में सिर्फ औरतें और कमसन लड़कियां ही नजर आ रही थी। कोई मर्द दिखाई न देता था। हत्ता कि समीना के घर के मर्द भी जैसे कहीं और चले गए हों। यूँ महसूस होता था इस मौके से इनका कोई वास्ता ही नहीं, गोया ये सब इनकी दुनिया से बाहर का मामला हो। हम अंदर दाखिल हुए तो औरतें तोहफे आगे बढ़ा रही थी। समीना की माँ को मुबारकबादें दी जा रही थी। गले मिलने और दुआओं का सिलसिला चल रहा था। कहीं तालियां बज रही थी, कहीं खुश के गीत गूंज रहे थे। पूरा माहौल अजीब तजाद लिए हुए था। खैखों के बीच एक अनकही संजीदगी, खुशी के शोर में दबी हुई उदासी। मगर मेरा दिल इस वक्त जोर से धड़क उठा जब मेरी नजर समीना पर जा ठहरी। वो एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसका चेहरा बिल्कुल जद पड़ चुका था, जैसे सारी रंगत कहीं खो गई हो। सर पर दुपट्टा इसने इस तरह लपेट रखा था जैसे खुद को दुनिया से छुपा रही हो। इसके चेहरे की जर्दी देखकर यूं लगा जैसे वो शदीद बीमार हो या फिर किसी बहुत बड़े सदमे से गुजर चुकी हो। घबराहट में तेजी से इसके करीब गई। दिल चाहा कि इसे जगा दूं, पूछूं कि सब ठीक तो है। मैंने नरम लहजे में कहा, ये तकरीब तो तुम्हारे लिए है, हम सब तुम्हारी खुशी में आए हैं। मगर मेरे अल्फाज फिजा में मुअल्लक रह गए और मेरे दिल में यह खदशा और गहरा हो गया कि यहाँ खुशी के नाम पर कुछ और ही हो रहा है। मैंने बेसाख्ता कहा, तुम बिस्तर पर क्यों लेटी हो? उठो, बाहर आओ, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अभी मैंने जुमला पूरा भी ना किया था कि इसकी माँ ने नरमी से मेरा हाथ थाम कर रोक लिया। धीमी आवाज में बोली, नहीं बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उठ नहीं सकती, 2-3 दिन बाद संभल जाएगी। यह सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैंने मासूमाना इसरार किया, अगर तबीयत खराब है तो तकरीब बाद में रख लेते, आज तो इसे आराम करने देना चाहिए था। मगर वो खामोश रही। इनकी आंखें नजरें चुरा गई, जैसे लफ्जों का बोझ उठाना इनके बस में ना हो। इसी लम्हे फिजा फिर से खैखों से भर गई। औरतें दोबारा हंसने लगी, जैसे कुछ हवा ही ना हो। यूं महसूस हो रहा था कि सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, जैसे किसी के दिल पर कोई आंच आई ही नहीं, जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर खाने का वक्त आ गया। दस्तरखान पर लजीज पकवान सजे थे। पुलाव, खुरमा, जरदा, हर शय फरवानी से मौजूद थी। औरतों ने शौक से खाना खाया, साथ साथ गीत गाए गए और हंसी की आवाजें गूंजती रही। तोहफे समीना की माँ के हाथों में थमाए गए। मुस्कुराते चेहरों के साथ मुबारकबादें दी गई कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है। ये जुमले बार बार दोहराए जाते रहे, मगर मेरे दिल में एक सवाल अटकता रहा, अगर ये खुशी है तो बिस्तर पर लेटी समीना की खामोश आंखें इतनी बोझल क्यों हैं? इन जुमलों में खुशी कम और रस्म का बोझ ज्यादा झलक रहा था। फिर धीरे धीरे सब औरतें अपने अपने घरों को लौट गई। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने एक फर्ज पूरा कर लिया हो, जैसे कोई अनदेखी रिवायत पूरी करके दिल को बहला लिया गया हो। मगर मेरे दिल में सवालों का शोर उठ चुका था, ऐसे सवाल जिनका जवाब वहां किसी के पास न था। समीना का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। इसकी निगाहों में छुपा हुआ दर्द मुझे चैन न लेने देता था, ऐसा दर्द जिसकी गहराई शायद मुझे बरसों बाद समझ में आनी थी,
लेकिन इस दिन एक बात मेरी समझ में ज़रूर आ गई थी। ये इज्तिमा महज खुशी का नहीं था, ये एक रस्म थी, सख्त, खामोश और बेरहम। ऐसी रस्म जो शायद हर लड़की की मुकद्दर में लिखी जाती है और जिसके बाद वो पहले जैसी नहीं रहती। कुछ ना कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। मुस्कुराहटों के पीछे, खामोशियों के अंदर समीना के इस दिन को गुजरे 2 बरस हो चुके थे, मगर मैं इसे भुला ना सकी। वो मंजर बार बार लौट आता। सजा हुआ घर, तोहफों की कतारें, दस्तरखान पर सजे खाने और बिस्तर पर लेटी समीना। इसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो बोलता नहीं था, मगर बहुत कुछ कह जाता था और हर बार मुझे अंदर तक हिला देता था। वो दर्द जो समीना की आंखों में था, आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरता गया और मुझे अंदर ही अंदर जख्मी करता रहा। वक्त गुजरता गया और मैं खुद भी इसी नाजुक मरहले तक आ पहुंची। वो उम्र जहाँ जिस्म की तब्दीलियां साफ दिखाई देने लगती हैं और बचपन पीछे रह जाता है। कभी अम्मा की निगाह मुझ पर जरा ज्यादा देर ठहर जाती, कभी वो मेरे लिबास के अंदाज पर हल्की सी तंबिया कर देती, कभी मेरे बालों को मोहब्बत से सहलाते हुए किसी गहरी सोच में खो जाती, जैसे माजी की कोई तस्वीर इनकी आंखों के सामने आ गई हो। मैं इन सब बदलाव को समझने की कोशिश करती रही, मगर कोई भी मुझसे साफ और खुलकर बात करने को तैयार न था। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत जमा कर ही ली। मैंने माँ से पूछा, अम्मा, वो क्या होता है जब लड़की को बड़ी कहा जाता है? वो कौन सा लम्हा होता है जिस पर इतनी खुशियाँ मनाई जाती हैं? सब तोहफे क्यों देते हैं और ये तकरीब क्यों रखी जाती है? और क्यों इस दिन सारी लड़कियां बिस्तर पर ही लेटी होती हैं? माँ ने मुझे गौर से देखा। वो चंद लम्हे खामोश रही। ऐसा लगा जैसे इनके दिल में कोई पुरानी याद जाग उठी हो, कोई ऐसा जख्म जिसे लफ्जों में ढालना आसान ना हो। फिर वो धीरे से बोली, वक्त आने पर सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। इनके ये अल्फाज मेरे सवालों को थमा ना सके, बल्कि और भारी कर गए। मैं जान गई थी कि सच मेरे करीब है, मगर इसे जानने के लिए मुझे अभी इंतज़ार करना होगा। ये कैसा इंतज़ार जो शायद किसी आजमाइश की खबर दे रहा था। यह कहकर वो चूल्हे की सिमत बढ़ गई और मैं वहीं बैठी रह गई। इनके चेहरे के बदलते तासरात को गौर से देखती रही, मगर मफहूम फिर भी मेरी गिरफ्त में ना आया। वक्त आगे बढ़ता रहा। चंद और महीने गुजर गए और मुझे यूं महसूस होने लगा कि शायद मैं भी इस घड़ी के करीब पहुंच रही हूँ जिसका जिक्र अम्मा बार बार करती थी। एक रात मैं खामोशी से बैठी थी। अम्मा आकर मेरे पास बैठ गई और नरमी से मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। कमरे में एक अजीब से संजीदगी उतर आई। ऐसी खामोशी जिसमें लफ्जों से ज्यादा माने थे। फिर वो धीमी आवाज में बोली कि शायद अब तुम जानने के काबिल हो गई हो। उन्होंने कहा कि जिस रस्म को हम खुशी का नाम देकर मनाते हैं, वो दरअसल इस दिन की निशानी होती है। वो दिन जब किसी लड़की को पहली बार महावरी आती है। अम्मा के मुताबिक इसी लम्हे माँ बाप के दिल का एक बोझ हल्का हो जाता है। इन्हें ये इत्मीनान मिलता है कि अब इनकी बेटी मुकम्मल औरत बन चुकी है। वो कहती रही कि अब वो माँ बनने के काबिल समझी जाती है, अब नस्ल आगे बढ़ाने के काबिल है और अब इसकी शादी के बारे में सोचा जा सकता है। इनके अल्फाज पर सुकून थे, मगर मेरे दिल में एक बेनाम से घबराहट जाग उठी। मुझे लगा जैसे ये बातें किसी खुशी की नहीं, बल्कि किसी फैसले की खबर दे रहे हो। ये कैसा फैसला जिसका बोझ शायद मुझे ही उठाना था। इसी खुशी के बहाने इन्हें तोहफे दिए जाते हैं, इसीलिए इन्हें सजाया जाता है और औरतें इकट्ठी करके इनका इस्तकबाल करती हैं। मैं हैरत से माँ की तरफ देखने लगी और धीरे से बोली, लेकिन माँ, वो सारी लड़कियां तो बिस्तर पर लेटी हुई हैं। इनके चेहरों पर खुशी के आसार तक नहीं। वो ऐसे लगती हैं जैसे बीमार हो। और एक लड़की तो बुरे तरीके से रो रही थी। इसकी चीखें आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं। बाकी औरतें इसे खामोशी करने की कोशिश में लगी हुई थी। यह सुनकर माँ चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। ऐसा लगा जैसे मैंने इनके सामने कोई बहुत भारी और मुश्किल सवाल रख दिया हो। वो कुछ देर साकित रही, फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, वो आराम कर रही हैं, क्योंकि अब इन्हें घर के काम सीखने होते हैं और शादी के बाद दूसरे घर जाकर नई जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो चंद दिन बिस्तर पर रहकर आराम करें। इन्हें समझाया जाता है कि अब इनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला है। मैंने कुछ न समझते हुए कहा, माँ, ये कैसा आराम होता है कि इंसान बिस्तर से उठ ही ना सके। मेरे अंदर बेचैनी और हैरत का एक तूफान उभर आया। मैं जानना चाहती थी कि यह खुशी है या कोई रीत।
जिसे बड़े एहतराम के नाम पर छुपाया जा रहा है। अपनी खुशी की तकरीब में वो न हंस सकी, न गाना गा सकी, न नाच सकी। यूँ लगता था जैसे इसने किसी गहरे सदमे का बोझ सह लिया हो। अगर ये वाकई खुशी का दिन था तो फिर वो लड़कियां खुश क्यों नजर नहीं आती? मेरे जहन में ये सवाल गूंजता रहा और माँ ने जैसे ही इसे मजाक में उड़ा दिया, हंसकर बोली, तो फिर तुम ही उठकर नाच लो। और यूं इस लम्हे को हंसी में घेर कर टाल दिया। मगर मेरे दिल के अंदर उठने वाले सवाल हंसी के साथ नहीं गए, हर बार वो और भी गहरे होते चले गए। मैं अब तक जितनी भी ऐसी तकरीबात में गई थी, हर बार एक ही मंजर दोहराया गया था। लड़कियां बिस्तर पर लेटी हुई, इनके चेहरे पर खुशी का कोई अक्स नहीं, सिर्फ ये खालीपन छाया रहता। कभी वो खामोशी से आंसू बहाती थी, कभी चुपचाप बैठी रहती थी। कुछ लड़कियों की आंखों में ऐसा महसूस होता जैसे जिंदगी की रोशनी ही दम तोड़ गई हो। फिर एक दिन सब कुछ मेरे साथ होने लगा। जब मैं खुद को इन अजीब परखती हुई नजरों के हिसाब में पाया तो दिल में खौफ और बेचैनी ने एक साथ जगह बना ली। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुस्तकबिल की कहानी इन खामोश नजरों में छुपी हो और मैं अब इन राजों की दहलीज पर कदम रख रही थी। जब मैंने माँ की आंखों में वो गहरी और बोझल खामोशी देखी जो बहुत कुछ कहने के बावजूद जबान तक नहीं आ रही थी, तो मेरे दिल में एक अनजाने से घबराहट ने घर बना लिया। वो खामोशी चीख चीख कर सच बता रही थी, मगर लफ्जों की इजाजत किसी को नहीं थी। मैं रोज आईने के सामने खड़ी हो जाती, अपने ही अक्स को गौर से देखती और दिल ही दिल में सवाल उठाती, क्या अब मेरी बारी आ रही है? क्या वो लम्हा करीब है जिसका जिक्र कोई नहीं करता मगर सब जानते हैं? क्या मैं भी इसी बिस्तर पर लुटाई जाऊंगी जिस पर समीना खामोश पड़ी थी? क्या मेरे चेहरे पर भी वही प्लेट उतर आएगी? क्या मेरे होंठ भी बेआवाज सहम जाएंगे? और क्या मेरी आंखों से भी वही खामोश आंसू बहेंगे? ऐसे आंसू जिन्हें देखने वाला तो होगा मगर पूछने वाला कोई नहीं। रफ्ता रफ्ता मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मैं किसी बंद कमरे में कैद होती जा रही हूँ, जैसे बाहर की दुनिया मुझसे दूर सरक रही हो, जैसे खुले आसमान के नीचे दौड़ने, हंसने और बेखौफ जीने वाले दिन कहीं पीछे रह गए हों। गुड़िया गुड्डों की शादियाँ, बचपन की हंसी और वो बेफिक्री सब एक ऐसे ख्वाब की तरह लगने लगे जो अब ताबीर से पहले ही टूटने वाला था। एक ऐसा ख्वाब जिसे बस याद रखा जा सकता था, जिया नहीं। माँ ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी के गिर्द दायरा तंग करना शुरू कर दिया। पाबंदियां सख्त हो गई, सवाल नापसंदीदा ठहरे। अब मुझे छत पर जाने की इजाजत नहीं थी, जैसे आसमान भी अब मेरे लिए महफूज नहीं रहा था। अब मैं दरवाजे पर खड़ी होना भी मना थी। छोटे छोटे काम भी एहतियात से करने पड़ते थे और हर वक्त दुपट्टा ओढ़ना लाजमी हो गया था। जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करती, माँ बस यही कहती, तुम अब बड़ी हो गई हो। वो अल्फाज अब मेरे लिए खुशी की अलामत नहीं रहे थे, बल्कि जैसे हर लफ्ज़ मुझे आहिस्ता आहिस्ता यह कैद में ढकेल रहा हो। अब मुझे हर तकरीब में जाने से साफ मना कर दिया गया था। बताया गया कि अब तुम्हें पर्दे में रहना है, किसी के सामने हंसना या बात करना भी मुनासिब नहीं। अब मेरी आवाज़ सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद थी, जैसे मेरी दुनिया सुकड़ती जा रही हो और हर सांस के साथ कोई और हिस्सा छिन रहा हो। फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जिसका मुझे अंदर ही अंदर खौफ था। माँ ने कहा कि कुछ दिन बाद तुम्हारे लिए भी एक तकरीब रखी जाएगी। ये सुनते ही मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और खौफ ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। मैंने घबरा कर पूछा, कैसी तकरीब? क्या वही तकरीब जिसमें मुझे बिस्तर पर लेटना होगा? वही जहाँ सब औरतें गाने गाएंगी और खुशी के नाम पर सब कुछ खामोशी में छुपाया जाएगा? मेरा दिल जान गया था कि जो कुछ भी होने वाला है वो मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। और ये खौफ अब सिर्फ मेरे दिल में नहीं बल्कि हर सांस के साथ मेरे वजूद में घुस गया था। और मैं अंदर ही अंदर चुपचाप आंखें बंद करके हर लम्हे का दर्द सहती रही। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरे पर झंझलाहट के आसार नमूदार हुए और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ये सब रस्में ज़रूरी हैं, हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है, तुम ना पहली हो ना आखिरी। इस रात मेरी आंखों को नींद ना आई। मैं कमरे में अधूरी रोशनी में जागती रही, कभी चांद की मध्यम रोशनी को देखती, कभी सितारों से खामोश बातें करती रही। हर लम्हा एक बेनाम खौफ मेरे दिल में घूम रहा था। मैं सोचती रही कि क्या वाकई मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह बदल जाएगी? क्या मेरा अंजाम भी समीना जैसा होगा? समीना, वो लड़की जो फिर कभी बाहर नहीं निकली,
जो खेलने वापस नहीं आई, जो हंसती बोलती लड़की से ये खामोश और बेजान वजूद में बदल गई। ऐसा महसूस होता था जैसे इसका अंदरूनी आलम ही कहीं मर गया हो और खुशी के नाम पर सब कुछ सिर्फ एक ढांचा बन गया हो। मैं यही सोचती रही कि अगर यही बड़ी होने का मतलब है, अगर यही औरत बनने की पहचान है, तो इसे खुशी क्यों कहा जाता है? फिर इन जख्मों को रस्मों के नाम पर सजाया क्यों जाता है? ये दर्द जो खामोशी में छुपाया गया, तोहफों की चमक में क्यों लपेटकर पेश किया जाता है? हर सवाल मेरे दिल में एक भारी बोझ की तरह रह गया और रात भर मेरी सोचें इसी बेनाम खौफ के गिर्द घूमती रही। फिर वो लड़कियां मेरे ज़हन में गुजर गई जिन्हें मैंने रोते हुए देखा था, जिनके आंसू खामोशी में बहाए जा रहे थे, जिनके जिस्म थर थर कांप रहे थे और जिनकी आंखों में जिंदगी का नूर मध्यम सा पड़ गया था। मैं सोचने लगी कि क्या वाकई जवान होना इतना दर्दनाक होता है? क्या एक मासूम बच्ची से औरत बनने का मतलब वाकई यही है? यही खामोशी, यही खौफ, यही बिस्तर पर लेटना। माँ ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मैं दिल ही दिल में अपने आप को यकीन दिलाने लगी। सोचती रही कि शायद वाकई कोई अच्छी बात होने वाली है। शायद ये वो दिन है जिसके लिए मुझे बार बार कहा गया था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा। सुबह से ही घर में हलचल थी, जैसे कोई त्यौहार या शादी की तैयारियां चल रही हो। माँ सुबह सवेरे उठ गई थी और मेरे लिए नया लिबास निकाला गया। मेरी चोटियों में रंग बिरंगी रिबन बांधे गई और मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई। हर चीज़ एक खुशी का मंजर दिखा रही थी, मगर मेरे दिल में खौफ की सनसनाहट छुपी हुई थी। हर लम्हा ऐसा लग रहा था कि खुशी और दर्द एक साथ मेरे वजूद में घुल मिल रहे हैं और मैं इस दिन के आने वाले हर लम्हे से अंदर ही अंदर लरज रही थी। मेरी सहेलियां मेरे घर आ रही थी। कुछ औरतें मुझे प्यार से चूम रही थी और कह रही थी, देखो दिलनशी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम एक औरत बन चुकी हो। मगर मैं अब भी अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी थी। मेरा जिस्म बिल्कुल ठीक था और मैं कहीं भी लेटने या झुकने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रही थी। इन सब के हुजूम के बीच मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया कि शायद ये दिन वाकई मेरी ज़िंदगी में एक नया बाब खोलने वाला है। हर बात यहाँ रस्म के साथ मुंसलिक थी। हर हरकत किसी पुरानी रिवायत की याद दिलाती थी। मैं खामोशी से माँ के साथ चल पड़ी, गाँव के ये कुछ घर की तरफ जहाँ दाई अम्मा रहती थी। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा सब कुछ तुम्हें जल्द समझ आ जाएगा। मेरे दिल में हल्की सी हिचकिचाहट पैदा हुई, मगर मैंने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये भी बड़ी होने की कोई रस्म है। हम गांव में रहते थे जहां हर काम और हर रस्म को एक ख़ास तरीके से अंजाम दिया जाता था। घर के अंदर पहुंचकर कुछ और औरतें हमारे साथ आई, मगर जैसे ही हमने दरवाजे के अंदर कदम रखा, दाई अम्मा ने सबको बाहर बैठने को कहा। अब सिर्फ माँ मेरे साथ अंदर गई। मैंने अपने दिल में खामोशी से ये एक सवाल उठाया, क्या ये भी वही लम्हा है जिसमें समीना ने अपनी खुशी को छुपा दिया था? मेरे दिल में एक बेनाम खौफ घुल गया और हर कदम के साथ ये महसूस होने लगा कि जो कुछ होने वाला है वो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दाई अम्मा ने मुझे एक चारपाई पर बैठने को कहा। कमरे में हल्की नीम रोशनी थी। खिड़की से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी और छत पर पंखा आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। कभी रुक जाता, कभी दोबारा हरकत में आ जाता। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, बेटा बस चंद मिनट की बात है, कुछ नहीं होगा। मैं धीरे से चारपाई पर बैठ गई और इर्द गिर्द के माहौल को गौर से देखने लगी। दाई अम्मा मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और इसने मेरे हाथ थामे। इसकी उंगलियां बारीक बारीक मेरी उंगलियों पर गुजरती रही, जैसे हर नशीब वो फराज को पढ़ रही हो। इसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में नरमी का अजीब इम्तिजाज था। यूं लग रहा था जैसे वो मेरे दिल की धड़कन सुन रही हो और मेरे हर छुपे खौफ को महसूस कर रही हो, गोया वो मेरी रूह की ज़बान समझ रही हो। फिर इसने धीरे से मेरी आंखों की पुतलियों को अपनी उंगलियों से छुआ और हल्का सा दबाव दिया, जैसे देख रही हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इसके बाद इसने मेरे पेट पर हाथ रखा और कुछ देर के लिए हल्की दबाव डाली। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद बस इतना ही काम है, शायद यही वो लम्हा है जिसकी तैयारी की गई थी। मगर मेरे अंदर एक बेनाम सनसनाहट छुपी रह गई थी, जो हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। ये सब कुछ जैसे मामूल के मुताबिक होना था, मगर अचानक दाई अम्मा ने मुझे चारपाई पर लेटा दिया। हवा में एक खामोशी छा गई
اور میرے دل کی دھڑکن ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے میری ٹانگوں کے ارد گرد کپڑے بچھانا شروع کیے اور آہستہ آہستہ مجھے رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ میں گھبرا کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دائی اماں نے نرم لہجے میں جواب دیا، کچھ نہیں بیٹا، یہ سب پرائیویسی کا حصہ ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے بے چینی کے عالم میں ماں کی طرف دیکھا، مگر وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس کی خاموشی میرے دل کے مطمئن نہیں کر پا رہی تھی اور ہر لمحہ خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی کہ شاید یہ صرف پرانا طریقہ ہے جو وہ آزماتی ہیں، مگر میرے اندر ایک عجیب سا سنسناہٹ پھیل گئی، یہ کیسی جو ہر لمحہ بڑھتے جا رہی تھی۔ اچانک میری نظر دائی اماں کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار آلہ تھا، ایک چمکتا ہوا دھاتی آواز جس کی نوک دھوپ کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ میری سانس جیسے رک گئی اور دل کی دھڑکنیں جیسے لمحے کے لیے تھم گئی ہو۔ میں نے خوف کے عالم میں دوبارہ ماں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیا واقعی یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے ہر چیز چھپی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں سوالات کی لہر دوڑ رہی تھی اور میرے حلقتے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی فریاد رکھی ہوئی تھی، مگر ماں کی آنکھوں میں وہی گہری خاموشی تھی، وہ خاموشی جو مجھے روزانہ کی زندگی میں چھو کر گزرتی رہی تھی اور جس نے میرے دل میں ایک انجانی بے چینی پیدا کر رکھی تھی۔ اس لمحے میرا دل خوف، تجسس اور بے چینی کے درمیان جھول رہا تھا۔ ہر دھڑکن میرے سینے میں کسی نامعلوم درد کو جگا دے رہی تھی، وہی خاموشی جس کے پیچھے ایک بہت بڑی اذیت چھپی ہوئی تھی اب مجھے آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ کانپتی ہوئی آواز میں نے کہا، ماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے میرے بالوں پر ہاتھ پھیر کر میری آنکھوں میں عجیب سی بے بسی چھپائے۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، بیٹا ہمت کرو، یہ بس چند لمحوں کا امتحان ہے، ہر لڑکی کو یہ سب سہنا پڑتا ہے، سب برداشت کر لیتی ہیں، تم بھی کر لو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا کر ایک طرف ہٹ گئی۔ پھر دائی اماں نے آہستگی سے وہ چمکتا ہوا آلہ میرے سمیت بڑھایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں جیسے رکی ہوئی تھی۔ ہر لمحہ ایسا محسوس ہوتا کہ وقت رک گیا ہے اور میں خود اس خوف کے درمیان قید ہوں جس کا اندازہ میرے نوجوان دل نے کبھی نہیں لگایا تھا۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور یوں لگا جیسے میرے جسم نے ایک دم میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ سانس لینا مشکل ہو گیا، حلق میں ایک دبی ہوئی سسکی اٹھی، مگر آواز بن کر باہر نہ آ سکی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، پلکیں بھاری ہو گئی اور سانس ٹکڑوں میں بڑھنے لگی۔ اچانک ایک ایسا درد آیا جیسے کسی نے میرے وجود پر پوری طاقت سے وار کر دیا ہو۔ یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بکھر گیا ہو، جیسے میری ذات کا کوئی حصہ اسی لمحے ٹوٹ کر رہ گیا ہو۔ ایسا لگا جیسے میری روح نے بھی اس اذیت کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہو۔ وہ تکلیف ایسی تھی جسے لفظوں میں قید کرنا ممکن نہیں۔ میں اس لمحے کو یاد تک نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ وہ لمحہ جب میں نے خود کو مکمل طور پر بے بس پایا، وہ لمحہ جب رسیوں میں جکڑا میرا جسم چار پائی پر قید تھا اور میری چیخ میرے سینے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری زبان پر خاموشی کی تال ڈال دیے گئے ہو اور آنکھوں کے راستے آنسوؤں کا ایک بے قابو سیلاب بہنے لگا ہو۔ میرے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا، شکلیں بگڑنے لگی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے گیا۔ اس ایک لمحے نے مجھ سے میری معصومیت، میرا سکون اور میرا یقین سب کو چھین لیا تھا۔ دل کی دھڑکن مدھم پڑ گئی اور اچانک مجھے ہوش و حواس سے یکسر بیگانہ ہونے کا احساس ہوا۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے ارد گرد وہی گانے بج رہے تھے، وہی تالیاں سنائی دے رہی تھی، عورتیں خوشی سے ناچ رہی تھی اور پورا ماحول ایک جشن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کچھ نوجوان لڑکیاں مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی دلہن ہوں یا کسی خاص مقام پر پہنچی ہوں، وہ مقام جس تک وہ خود بھی پہچاننا چاہتی ہیں۔ مجھے تحفے دیے جا رہے تھے، رنگ برنگی لپٹی ہوئی چیزیں، مہندی کی پیکٹ، چوڑیاں، کپڑے اور مٹھائیاں۔ کچھ لوگ تعریفیں جملے کہہ رہے تھے، میری تعریف کر رہے تھے اور میں وہی لیٹی ہوئی تھی، چار پائی پر بے حرکت، جیسے جسم نے اپنا حق چھوڑ دیا ہو۔ میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں روشنی معدوم تھی اور میری جسمانی تکلیف ابھی بھی واضح تھی۔ ہر حرکت پر ایسا لگ رہا تھا جیسے زخم اب بھی تازہ ہیں اور ہر جنشی پر چیختے ہیں
मैं इर्द गिर्द की खुशी को देखकर हैरान और उलझी हुई थी। मेरे दिल में एक अजीब तजाद था। देखने वालों के लिए ये खुशी का दिन था, लेकिन मेरे लिए ये दिन दर्द और खामोशी का गलाजत था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे दुनिया बाहर जश्न मना रही हो, मगर मैं अंदर ही अंदर एक सुनसान कमरे में कैद हूँ और हर हंसी मेरी याददाश्त के जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। मुझे इर्द गिर्द नाचती हुई औरतों पर गुस्सा आ रहा था। इनके खैखाखे मेरे दिल के जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे और इनके गीत मेरे अंदर छुपी चीखों को दबा देने की कोशिश कर रहे थे। वो सब खुशी थे, जैसे कोई अजीम काम सर अंजाम दे दिया हो, जैसे इनकी खुशी किसी कामयाबी का जश्न हो। मेरे अंदर ये खामोश मगर जोरदार आवाज़ बार बार उठ रही थी, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे काटा गया, मेरे जिस्म और वजूद को छीन लिया गया। मेरे दिल की गहराइयों में दर्द और गुस्सा एक साथ उभरते जा रहे थे और मैं महसूस कर रही थी कि ये खुश सिर्फ एक पर्दे के पीछे छुपी हकीकत है। मेरी रूह तड़प रही थी और यूं लग रहा था जैसे मुझे मेरी फितरत और आज़ादी से जुदा कर दिया गया हो। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर मेरे साथ ये सब हुआ है तो फिर ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है। ये खुशी किसी दर्द के ऊपर सजाई गई है। ये किसके लिए खुशी है और किसके लिए अजियत। इसी दौरान कुछ नौजवान लड़कियां मेरे पास आकर बैठ गईं। वो शायद चंद माह या 1-2 साल पहले इस तजुर्बे से गुजरी हुई थी, मगर इनकी खामोशी में भी एक अनजानी समझ और खौफ छुपाया था। इनकी आंखों में वही दर्द झलक रहा था जो मेरी रूह में उभर रहा था और यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, मगर अल्फाज में नहीं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये सब कुछ सिर्फ एक रस्म है, मगर अंदर से हर धड़कन ये सवाल कर रही थी कि इंसाफ कहाँ है और हकीकत कहाँ छुपी हुई है। उन्होंने मुझे हमदर्द निगाहों से देखा और इनकी आंखों में वही दर्द झलक रहा था जो अभी भी मेरी रूह में घुल गया था। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम सबको तो मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर नरमी और अफसोस की मिलाजुला लहजे में बोली, हमें सख्ती से मना किया जाता है कि किसी को कुछ ना बताओ। कहते हैं कि अगर पहले बता दोगी तो लड़की के दिल में खौफ बढ़ जाएगा और वो खौफ इसे और ज़्यादा तकलीफ देगा। पहले से जानना सिर्फ खौफ को बढ़ाता है और खौफ के साथ दर्द भी बढ़ता है। मैंने बेबसी के साथ कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर मुझे बताया होता तो शायद मैं खुद को तैयार कर लेती, शायद मैं बच निकलती, शायद मैं भाग जाती। उन्होंने आँख भरते हुए जवाब दिया, बेटा, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ये एक ज़रूरी रस्म है। यह हर लड़की के साथ होती है। इसे सब्र करना सीखना चाहिए और इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मेरी लरजती हुई आवाज़ में एक आखिरी सवाल भरा हुआ था, लेकिन अगर यह वाकई ज़रूरी है तो फिर दर्द और खौफ को इतना क्यों बढ़ाया जाता है? क्या ये रस्म खुशी के लिए है या सिर्फ सब्र की एक आजमाइश है? इनकी आंखों में हल्की सी मायूसी झलक गई और यूँ महसूस हुआ जैसे वो भी कभी अपने अंदर के सवालों से लड़ती रही हो, मगर रस्म की ताकत ने इन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर दिया हो। लेकिन मेरे दिल में एक तूफान सा उठा रहा था। ये सब कुछ मुझे सरासर गलत महसूस हो रहा था। अल्लाह ने हमें जिस तरह पैदा किया वो बिल्कुल मुकम्मल और सही है, तो फिर हम किस इख्तियार से एक बच्चे के जिस्म में मुदाखलत करते हैं? मेरा दिल चीख रहा था और दिमाग सवालत से भरा हुआ था। पहली बार मुझे शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि यह खामोश जुल्म है जिसे खुशी के नाम पर छुपा दिया जाता है। मैं अंदर से लरस रही थी और सोच रही थी कि हम आखिर ये जुल्म क्यों बर्दाश्त करते हैं। इस दौरान एक लड़की ने फौरन कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तो नानी के कहने की हुई चीज़ है। इसे करना ज़रूरी है ताकि लड़कियां पाकीज़ा रहें। मैं हैरत और दुख के साथ बोली, अगर ये वाकई ज़रूरी है तो क्या अल्लाह ने इसे नहीं बनाया? अगर अल्लाह ने बनाया है तो हम कौन होते हैं कि इसे गलत करार दें? क्या हम समझते हैं कि हम अल्लाह की तख्लीक में इस्लाह कर रहे हैं? ये कौल लड़की गुस्से से बोली, बस अब ये फजूल बातें बंद करो। तुम बगावत कर रही हो। तुम ये सब कहकर रस्म को शर्मिंदा कर रही हो। मेरे अंदर गुस्सा और बेबसी एक साथ उबल रही थी। मैं खामोश रही, मगर दिल में एक नया अज़म जाग रहा था, जैसे मैंने फैसला कर लिया हो कि एक दिन मैं ये सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, चाहे कितनी भी मुखाफिलत हो। वो कहने लगी, खामोशी से लेटे रहो। तुम्हारे साथ कोई अनोखी बात नहीं हुई। जो तुमने सहा है वो हम सब सह चुके हैं। हम सब इसी मरहले से गुजरे हैं।
اور دیکھو آج ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ مگر میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے اندر کہیں گہرائی میں یہ یقین بڑھ چکا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ معمول نہیں، یہ تکلیف ہے، ایسی تکلیف جسے زبردستی معمول بنا دیا گیا ہے۔ میرے دل کے کسی کونے میں وہ چیخ اب بھی قید تھی جو میں اس دن باہر نہیں نکال سکی تھی۔ وہ آواز آج بھی میرے اندر زندہ تھی، سانس لیتی ہوئی، مجھے ہر لمحہ یاد دلاتی ہوئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کئی دن تک مجھے تیز بخار رہا، میرا جسم مسلسل درد میں ڈوبا رہا، زخموں پر بار بار پٹیاں بدلی جاتی، مگر تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ذرا سی حرکت پر درد بڑھ جاتا، جیسے جسم مجھے خود اپنی اذیت یاد دلانا چاہتا ہو۔ راتوں کو نیند میں چونک کر اٹھ جاتی، خواب میں چیخنے لگتی، اور تب ماں مجھے اپنے سینے سے لگا کر خاموش کرواتی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک گہری بے بسی ہوتی، ایسی بے بسی جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، اور میں خود کو اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا جسم تو زندہ ہے، مگر میرے اندر کی دل نشین کہیں پیچھے رہ گئی ہو، وہی جہاں میری چیخ دفن کر دی گئی تھی، میری ہنسی کہیں گم ہو چکی تھی، اور میرا بچپن جیسے اچانک میرے ہاتھوں سے پھسل کر نکل گیا ہو۔ میں روز آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ سے سوال کرتی، کیا میں واقعی بڑی ہو گئی ہوں، یا صرف میرے جسم کو بڑا سمجھ لیا گیا ہے؟ کیا عورت ہونا صرف یہی ہے، یا یہ ایک بچی کی خاموشی قربانی ہے جو کسی نے دیکھنے کے لیے رکھی ہی نہیں؟ میرے دل میں وہی معصوم اور بے جواب سوالات رہ گئے جنہیں کوئی سمجھنے یا جواب دینے والا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں جسمانی طور پر بہت بدل گئی، میرے رنگ میں نکھار آیا، بال لمبے اور گھنے ہو گئے، آنکھوں میں یہ گہری سنجیدگی اور وقار پیدا ہوا، اور میری چال میں اعتماد شامل ہو گیا۔ مگر اس خوبصورتی کے پیچھے چھپے زخم آج بھی وقتاً فوقتاً درد دیتے تھے، جیسے کوئی پرانا حادثہ دوبارہ یاد دلانے آیا ہو۔ میری جوانی دیکھ کر ماں باپ نے شادی کے حوالے سے باتیں شروع کر دی تھی۔ کچھ مہینوں بعد ایک رشتہ آیا اور سب نے کہا، کیا قسمت ہے، کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اور ایک مالدار گھرانے میں جا رہی ہے۔ مگر میرے دل کو دیکھ کر یہ خوف سا پیدا ہوا۔ اس مرد کا جسم بھدا اور پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، اس کی عمر میرے والد کے برابر تھی، اور سر پر ایک بھی بال باقی نہیں تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سا الجھن اور بے چینی پیدا ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ خوبصورتی کے ساتھ آنے والا یہ درد شاید کبھی ختم نہ ہو۔ وہ شخص مجھ سے کئی سال بڑا تھا، اور اس کے بڑھاپے کے آثار اس کے جسم اور سر پر واضح تھے، مگر چونکہ وہ دولت مند اور گاؤں میں معزز سمجھا جاتا تھا، ماں باپ نے بلا کسی تعمیل کے فوراً راضی ہو گئے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میری کیا خواہش ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں اس شادی کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ میری مرضی کسی کو اہم نہیں لگتی تھی۔ شادی ہو گئی اور سب نے خوشی سے کہا، دیکھو دل نشین نے کیسی خوش قسمتی پائی ہے۔ مگر خوشی کے یہ چند دن زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ جلدی ہی وہ شخص اپنی عجیب و غریب باتوں اور رویے سے میری زندگی میں ایک نئی بے چینی لے آیا۔ رات کے سناٹے میں وہ میرے قریب آتا، آہستہ آواز میں کہتا، تم کچھ الگ ہو، تم وہ نہیں جو ایک بیوی میں ہونی چاہیے۔ میں خاموش رہتی، مگر میرے دل میں اضطراب اور خوف کی لہر بلند ہوتی۔ میرا دل دن بدن بے چینی اور خوف سے بھر گیا۔ میں سوچتی کہ یہ لمحہ خوشی کا ہونا چاہیے تھا، مگر یہ خوشی کبھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے ہر لفظ نے میرے دل میں تیر کی طرح درد بھرا، اور ہر جملہ میرے پرانے زخموں کو ایک بار پھر چیر دیتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر دن ایک نیا زہر میری روح میں گھلا دیا جائے۔ ہر رات میں ان یادوں میں گھرتی، اور ہر دن میں اس کی تلخ باتوں کا اثر محسوس کرتی۔ وہ اکثر رات کے سناٹے میں میرے قریب آ بیٹھتا اور میری طرف غور سے دیکھتا، پھر اس کی آواز میں تلخی اور بے حسی مکس ہو کر بولتا، تمہیں میری محبت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ تم کیوں یوں بڑی رہتی ہو جیسے کوئی زندہ لاش ہو؟ تم ہنستی کیوں نہیں، بولتی کیوں نہیں، تم رد عمل کیوں نہیں دیتی، تم کوئی احساس کیوں ظاہر نہیں کرتی؟ تم تو صرف ایک خوبصورت جسم لگتی ہو، مگر اندر سے خالی بے جان۔ اس کی ہر بات جیسے میرے دل پر پتھروں کی طرح گرتی۔ وہ کہتا، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، تمہارا چہرہ، سب کچھ خواب جیسا ہے، مگر جب میں تمہیں چھوتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے پتھر کو ہاتھ لگا ہو۔ تمہارے اندر کوئی روح نہیں، کوئی احساس نہیں، تم محبت سے خالی ہو، بس ایک جسم ہو جس میں زندگی نہیں۔ میں خاموش رہتی،
بے آواز بے حس میرے دل کی گہرائی میں چیخیں دب گئی تھی، مگر زبان پر کچھ نہ آتا۔ میں کیسے بتاتی کہ جو گرم جوشی، جو احساس، جو محبت وہ مجھ سے چاہتا ہے، وہ سب کچھ میری زندگی سے چھین لیا گیا تھا۔ میں کیسے سمجھاتی کہ میرا جسم تو اس کے پاس ہے، مگر میرا دل اور روح اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں بس اپنی خاموشی میں اس کے الزامات اور تلخ باتوں کو سہتی رہی، اور دل کے اندر یہ خالی پن اور درد کا طوفان بڑھتا گیا، مگر میری روح تو بہت پیچھے کہیں دفن ہو چکی تھی۔ اسے چار پائی پر، اسی دن، اسی لمحے میں، اسے ناقابل بیان درد کے نیچے میرا جسم آگے بڑھ گیا تھا، عمر کے ساتھ شادی کے بندھن تک، مگر میری روح وہی رک گئی تھی جہاں مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میری خاموشی، میری بے دلی، میری سرد مہری سب اس ظلم کی نشانیاں ہیں جو مجھ پر ڈھایا گیا تھا۔ یہ بے حسی میری فطرت نہیں، میری مجبوری تھی۔ میں کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ زخم دوبارہ کھلے، وہ زخم جسے میں نے برسوں میں بڑی مشکل سے لفظوں سے چھپایا تھا، یادوں سے دبایا تھا اور خود سے بھی انکار کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ بار بار سوال کرتا، کیا تمہارا پہلے کسی سے کوئی رشتہ تھا؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ کیا تمہیں میری محبت سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتی تھی؟ میں ہر بار خود کو سمیٹ کر جواب دیتی، نرم لہجے میں، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو، میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں رہا، یہ سب وہم ہے، تم جانتے ہو میں صرف تمہاری ہوں، کسی اور کی کبھی نہیں تھی۔ مگر میرے الفاظ اسے مطمئن نہ کر پاتے۔ وہ پھر وہی سوال دہراتا، وہی شکوے، وہی الزام۔ اگر ایسا ہے تو تم ایسے کیوں ہو؟ تمہارے اندر کچھ کیوں نہیں؟ تم خاموش کیوں رہتی ہو؟ تم ہنستی کیوں نہیں؟ تم لپٹتی کیوں نہیں؟ تم کسی بیوی کی طرح خوش کیوں ظاہر نہیں کرتی؟ اور میں ہر بار خاموش رہتی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں سچ بول دوں تو شاید وہ بھی مجھے ٹوٹا ہوا سمجھے، ادھورا سمجھے، یا الزام پھر بھی میرے ہی حصے میں آئے۔ میں اس سچ کے بوجھ کو اکیلے ہی اٹھاتے رہی اور اپنی خاموشی کو ہی اپنی حفاظت بنا لیا۔ وہ مسلسل میرے چہرے کو دیکھتا، پھر سوال کرتا، تمہارے چہرے پر یہ ویرانی کیوں چھائی ہے؟ تمہیں میری موجودگی سے کوئی خوشی کیوں نہیں ملتی؟ میں صرف خاموش رہتی، نظریں جھکا کر اپنے دل کی دھڑکن سنبھالتی، جیسے کسی چھپی ہوئی طوفان کو دیکھ رہی ہوں۔ میرے جسم نے اس کے قریب ہونے کی صورت اختیار کر لی تھی، مگر میری روح کہیں اور پچھلے زخموں کے نشانات اور یادوں کی گہرائیوں میں دبی رہتی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا سمجھانا چاہتی ہوں یا وہ کس چیز کی توقع کر رہا ہے۔ میں بس وہاں بیٹھی رہتی، دل میں چھپی گھٹن اور اضطراب کو محسوس کرتی، ہر لمحہ اپنے اندر ہی غیر مرئی پنجرے کا بوجھ اٹھاتی۔ میرے پاس جسم موجود تھا، مگر میرا سچ، میرا درد، میرا خوف کسی کے سامنے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے اندر دبے جذبات کو چھپاتے چھپاتے تھک چکی تھی، اور ہر اس لفظ پر جو وہ کہتا دل میں ایک نیا زخم سا لگتا۔ وقت کے ساتھ اس کی بے چینی اور ناراضگی بڑھنے لگی۔ دن بھر وہ خاموش رہتا، باتوں میں سرد مہری برتتا، اور مجھے احساس محسوس ہوتا جیسے میں اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں، کوئی فرد حاضر نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ میرے اندر کے سوال، میری چیخیں، میری بے بسی، سب کچھ ایک بار پھر میرے سینے میں قید ہو گیا تھا، اور میں بس خاموشی سے اپنے زخموں کے سائے میں سانس لیتی رہی۔ رات کے سناٹے میں جب اندھیرا ہر آواز کو اور بھی بھاری بنا دیتا، وہ اکثر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، تمہاری اس خوبصورتی کا آخر فائدہ ہی کیا ہے؟ تم نے تو مجھے مرد ہونے کے احساس بھی محروم کر دیا ہے، تم نے میری خودی کو کچل دیا ہے، اب مجھے اپنی ہی وجود پر شک ہونے لگا ہے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں سے ہوتے ہوئے سیدھا دل میں اتر جاتے، جیسے کوئی پرانا زخم دوبارہ چھیڑ دیا گیا ہو۔ وہ مزید کہتا، تمہارے ساتھ وقت گزار کر یوں لگتا ہے جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، جیسے میں خود کو بدلتا جا رہا ہوں، ٹوٹتا جا رہا ہوں۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی کیونکہ جواب دینے کی ہمت مجھ میں کب کی مر چکی تھی۔ اس کی ہر بات کے ساتھ میرے اندر وہی پرانا درد جاگ اٹھتا، وہی لمحہ آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا جب میری چیخ کو رسم کے نام پر دبا دیا گیا تھا، جب میرے جسم کو ایک روایت کی قربانی بنا دیا گیا تھا۔ وہ درد آج بھی میرے اندر کہیں زندہ تھا، بس برسوں سے خاموش پڑا تھا، مگر اب میرے شوہر کے الفاظ اس خاموش درد کو دوبارہ جگا رہے تھے، اسے رسنے پر مجبور کر رہے تھے، جیسے کوئی ناسور جو بھرنے کا نام ہی نہ لے،
مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے وہ شاید کبھی جڑ ہی نہیں سکتی، جیسے میرے وجود میں کوئی ایسی درار پڑ گئی ہو جسے نہ وقت بھر سکتا ہے، نہ کوئی محبت، نہ کسی کی چاہت۔ میں خود کو یک ایسی لکیر کی طرح محسوس کرنے لگی تھی جو بیچ میں ہی ٹوٹ گئی ہو، جو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا بھی زور لگا لیا جائے۔ میرا جسم زندہ تھا مگر اندر کہیں کچھ ہمیشہ کے لیے بکھر چکا تھا، یہ کہانی جو شاید کبھی مکمل نہ ہو سکے۔ وہ دن میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ شادی کو ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے مگر میرے شوہر کے دل میں مجھ پر شک بیٹھ چکا تھا۔ وہ بار بار دہراتا، تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے، تم مجھے قبول ہی نہیں کرتی، تم میرے قریب آتے ہوئے بھی اجنبیت محسوس کرتی ہو، تم وہ لمس نہیں دیتی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ شروع میں یہ سب باتیں صرف الفاظ تک محدود رہی، مگر جب میں ہر بار خاموش رہتی اور کوئی واضح جواب نہ دے پاتی تو اس کی باتیں دھیرے دھیرے چیخ و پکار میں بدل گئی۔ وہ اونچی آواز میں بولنے لگا، دروازے زور سے بند کر کے مجھ پر الزام تراشتا۔ میں خوف سے کسی کونے میں دبک جاتی۔ وہ دیوار پر ہاتھ مار کر دوہراتا، بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو؟ کیا اب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہو؟ میرے پاس جواب نہ تھا کیونکہ میرے دل میں واقعی کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر سوال میرے اندر پہلے سے موجود زخم کو دوبارہ چھید دیتا، ہر الزام میرے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر دیتا اور میں خود کو کہیں چھپانے کی کوشش میں دبک جاتی۔ ایک دن شام کے وقت جب میں چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی، وہ پیچھے سے آیا۔ اس نے میری کلائی مضبوطی سے پکڑ لی اور زور سے کھینچا۔ میری سانس رک گئی، دل تیز دھڑکنے لگا اور میں ایک لمحے کے لیے خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کرنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں سمجھ گئی کہ میری زندگی اب بھی اسی پرانی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے، وہی جو برسوں پہلے مجھ سے چھینی گئی تھی، وہی درد جو اب تک میرے اندر زندہ تھا۔ میں اچانک گھبرا گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ کب میری زندگی میں سکون آئے گا؟ چائے کا کپ میرے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر گر گیا اور ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ وہ غصے میں چلایا، تم مجھے پاگل کرنے پر تلی ہوئی ہو، تم جیسی بیوی کے ساتھ مرد نہ جیتا ہے نہ چلتا ہے، تمہیں تو یوں لگتا ہے جیسے تم خود کو کسی اور کے لیے بچا کر بیٹھی ہو، تمہیں مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، تم میرے ساتھ رہ کر بھی میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ میں بے بسی سے رو پڑی، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور دل ایک خوفناک خلا میں گرتا محسوس ہوا۔ کانپتی ہوئی آواز میں میں نے کہا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میری زندگی میں کبھی کوئی نہیں رہا، میں نے تم سے پہلے کسی مرد کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ مگر وہ نہ سنتا نہ سمجھتا، اسی کا ذہن جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ہر لمس کا ویسا ہی جواب دوں جیسا فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جیسا کہ کہانیوں اور افسانوں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن میرے لیے وہ سب ممکن نہیں تھا۔ میری روح کہیں کہیں ادھوری، زخمی اور چھپی ہوئی تھی اور وہ صرف میرے جسم کو دیکھ رہا تھا، میری خاموشی اور درد کو نہیں۔ میں وہاں بیٹھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف اور روح میں ایک پرانا زخم لیے، اور سمجھ گئی کہ زندگی کبھی بھی صرف جسمانی رشتوں اور توقعات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ اندر کے دکھ اور خاموش اذیت کی داستان بھی ہوتی ہے جو دیکھنے والوں سے چھپی رہ جاتی ہے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، کچھ ایسا جو مر چکا تھا اور جسے شاید دوبارہ کبھی زندہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو بہت دیر سے گھر آیا، اس کے قدموں کی آہٹ اور جسمانی انداز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سانسوں سے شراب کی تیز بو آ رہی تھی اور آنکھوں میں نشے کے ساتھ غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ میرے دل میں ایک نیا خوف اتر آیا، ایک ایسا خوف جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اور تلخ لہجے میں بولا، اب تو تمہیں ذرا سی شرم بھی نہیں رہی، تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں، میں ساری رات گھر سے باہر رہوں اور تمہیں کچھ محسوس ہی نہ ہو، میری باتوں کا بھی تم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، شاید تمہیں سکون ہی ملتا ہے جب میں تم سے دور ہوتا ہوں۔ اس کی شدت اور تلخی نے میرے دل دبوس کر دیا۔ وہ میری طرف بڑھا اور میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ اس رات میں نے ہمت جمع کی، دل میں گھبراہٹ اور اضطراب کے باوجود آہستہ سے کہا، تم آخر مجھ پر اتنا شک کیوں کرتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں، میں تمہاری عزت ہوں، تمہارا رشتہ ہوں۔ میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے چہرے پر غصے کی ایک اور لہر اتر گئی۔
इसके लबों पर तनस भरा मुस्कुराहट सा झलक रहा था और मेरे अंदर खौफ के साथ ये खालीपन भी गड़ रहा था। मैं जान रही थी कि मेरे दिल की खामोश चीखें और मेरे अंदर छुपे जख्म इसके सामने बेअसर रहेंगे, लेकिन इस रात मैंने खुद को संभाला, अपनी खामोशी और खौफ को अंदर ही अंदर महफूज रखा, क्योंकि ये मेरा वाहिद हथियार था अपनी हिफाजत का। इसने अचानक जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। एक लम्हे के लिए मेरे कान सुन हो गए, जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें एक साथ बंद हो गई हो। सर के अंदर एक तेज गूंज सी भर गई, आंखों के आगे अंधेरा लहरा गया। मैं अपनी जगह साकित रह गई, जैसे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। वो चीख कर बोला, बस करो, तुम्हारी बातें अब मेरे लिए जहर बन चुकी हैं। मुझे तुम्हारी मासूम शक्ल पर भी शक होने लगा है। तुम जैसी औरतों को शौहर नहीं, जंजीर चाहिए। इसके अल्फाज मेरे वजूद पर कोड़े की तरह बरस रहे थे। मैं चीख उठी, मगर वो चीख भी कमज़ोर थी, टूटी हुई थी, जैसे मेरे अंदर से नहीं बल्कि किसी गहरे कुएं से निकल रही हो। मैं खुद को घसीटती हुई बिस्तर तक ले गई और वहीं लेट गई। जिस्म कांप रहा था, दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था और कानों में इसकी आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। इस रात नींद मेरी आंखों से कौन सौ दूर थी। मैं छत को घूरती रही, हर लम्हा खौफ और बेबसी मेरे साथ लेटती रही। दिल में एक ही सवाल गर्दिश करता रहा कि आखिर मैंने कौन सा जुर्म किया है, क्यों मेरी खामोशी को मेरा कसूर बना दिया गया है। अगली सुबह मैंने कांपते हाथों से माँ को फ़ोन किया। आवाज़ बामुश्किल हलक से निकली। मैंने कहा, माँ, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ ने मेरी आवाज़ सुनी तो थके हुए और बेजार से अंदाज में बोली, अब क्या मसला है? तुम हर रोज़ एक नई परेशानी लेकर बैठ जाती हो। मेरे अंदर कुछ और टूट गया। मैंने टूटी हुई आवाज़ में कहा, माँ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती। मैं बस खाली हो चुकी हूँ। वो खालीपन जो ना आंसुओं से भरता था ना अल्फाज से, वो खालीपन जो मेरे अंदर ये खबर की तरह बन चुका था, जहाँ मेरी हंसी, मेरी आवाज़ और मेरी ख्वाहिशें दफन हो चुकी थी। जैसे मेरे अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया हो। हर एहसास, हर उम्मीद, हर रोशनी कहीं दफन हो गई हो। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये सब शादीशुदा ज़िंदगी में होता है। शुरू में ऐसे ही होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ तसल्ली के अल्फाज हैं, वो लफ्ज़ जो दिल को थोड़ा सा सुकून देकर हकीकत के ज़ख्मों को छुपा देते हैं। मुझे मालूम था कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हर गुजरते दिन के साथ सब कुछ और बिगड़ता जा रहा था, जैसे मेरी ज़िंदगी एक छोटे छोटे दर्दों की जंजीर में बंधी जा रही हो। एक दिन का मंजर आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। वो सुबह नाश्ता कर रहा था और मैं खामोशी से सालन में नान भिगो रही थी। कमरे में सुकून छाया हुआ था, मगर मेरे दिल में एक हल्की सी लर्जिश महसूस हो रही थी। अचानक इसने तंजिया लहजे में कहा, तुम खाती भी ऐसे हो जैसे खाने का भी दुख हो। मैंने नज़रें थोड़ी देर के लिए इसकी तरफ उठाई, फिर आहिस्ता से कहा, दुख सिर्फ खाने का नहीं होता। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा, आंखों में हैरत और तल्खी के मिले जुले तासरात के साथ। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं फौरन बोली, कुछ नहीं, और फिर दोबारा नज़रें नान में छुपा ली, जैसे दुनिया का हर मसला मेरे अंदर दफन हो गया हो। वो कुर्सी पीछे खींच कर खड़ा हो गया और कमरे की फिजा एक बार फिर भारी हो गई। हर हरकत में इसकी तल्खी और मेरे अंदर की बेबसी एक दूसरे से टकराने लगी, जैसे ये खामोश जंग है जिसका कोई इख्तिमाम नहीं। वो गुस्से से बोला, तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त उदासी क्यों बसी रहती है? तुम रो क्यों नहीं लेती? कभी हंसते क्यों नहीं? तुम्हारा दिल आखिर पत्थर क्यों बन गया है? मैंने नज़रें झुका ली और बहुत धीरे से कहा, शायद इसलिए कि किसी दिन मेरा दिल वाकई पत्थर बना दिया गया था। किसी रस्म ने, किसी खामोशी ने और किसी ऐसी ज़बरदस्ती ने जिस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मेरे अल्फाज हवा में मुअल्लक रह गए, मगर इसके दिल तक ना पहुंच सके। वो सुनना नहीं चाहता था, या शायद सुनने की हिम्मत ही नहीं रखता था। एक और दिन रात के सन्नाटे में इसने मुझे अपने करीब करने की कोशिश की। जैसे ही इसका लम्स बढ़ा, मैंने बेख्तियार अपने कंधे हटा लिए। यह हरकत आरादी नहीं थी, ये मेरे जिस्म की याददाश्त थी, वो याददाश्त जो अब भी डरी हुई थी। वो फौरन पीछे हट गया, तल्खी से बोला, बस करो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती तो कम से कम मेरा मजाक तो ना उड़ाओ। मैं मर्द हूँ और मुझे सब कुछ महसूस होता है। इसकी आवाज़ में गुस्सा था, मगर इस गुस्से के नीचे एक जख्मी अना भी छुपी हुई थी। वो कहने लगा, तुम्हारे लम्स में, तुम्हारे अंदाज में, तुम्हारी आंखों में मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होता
कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम मुझे अपना मानती ही नहीं हो, तुम मुझे अपने करीब आने ही नहीं देती। मैंने एक बार फिर खुद को समेटा, जैसे टूटे हुए वजूद को हाथों से जोड़ रही हो, और आहिस्ता से कहा, मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं था, ना पहले ना अब, लेकिन तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसने मेरे एहसासात को अंदर ही अंदर मार दिया है। मेरे अल्फाज सच थे, मगर वो इन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं था। शायद क्योंकि ये सच इसके सवालों का जवाब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना था जिसमें वो खुद को देखने से घबरा रहा था। मेरे लिए मेरी खामोशी अब जुर्म बन चुकी थी, मेरी लापरवाही गुनाह थी, और मेरी बेबसी इसके नज़दीक बेवफाई। रोज़मर्रा के मामूलात में यही मंजर दोहराता रहता था। छोटे छोटे जुमले लम्हों में लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेते, और मैं हर दिन अपनी खामोशी के गहरे समंदर में और ज़्यादा डूबती चली जाती। वो समझता था कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, मगर हकीकत ये थी कि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं क्या छुपा रही हूँ। शायद मैं खुद से ही छुपी हुई थी, अपनी ही यादों में, अपने ही खौफ में महसूर। दिल चाहता था कि मैं चीख चीख कर सबको बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ, कि किस तरह एक रस्म ने मेरे अंदर के हर जज्बात को छीन लिया था, कि किस तरह मुझे अंदर से खाली कर दिया गया। लेकिन अपना वो वक़्त था, ना वो हिम्मत। अब बस जिंदगी थी, जख्मों के साथ चलती हुई, हर दिन अपने अंदर एक नया सवाल लेकर सामने आती, और मैं हर सवाल के जवाब में सिर्फ खामोश रख देती। जब मेरे शौहर ने मुझे चंद दिन के लिए माँ के घर भेजा, तो मैंने दिल में सोचा, शायद ये महज वक्ती नाराज़गी है, शायद कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा और खामोशी से अपने कमरे में बैठी रही। माँ भी खामोशी से सब समझ गई थी। इसकी आंखों में वही पुरानी तशवीश और दर्द झलक रहा था जो मेरे दिल को हर कोने में मौजूद था। चंद लम्हे हम बस एक दूसरे की खामोशी में बैठे रहे। अल्फाज की ज़रूरत न रही, क्योंकि कभी कभी एक नज़र ही सब कुछ कह देती है। मैंने अंदर से सोचा, शायद ये वक्त का इम्तिहान है, शायद ये दूर भी गुजर जाए, मगर मेरे जख्मों की गहराई को कोई भर ना सकेगा। माँ को भी महसूस था कि कुछ तो मसला है, लेकिन शायद वो चाहती थी कि वक्त गुजरे और सब कुछ खुद ब खुद संभल जाए। दोपहर का वक्त था कि मेरे मोहल्ले की चंद पुरानी सहेलियाँ अचानक घर आ गई। वो सब भी शादीशुदा थी, अपने घरों में किसी न किसी हद तक मजबूत और जिम्मेदार ख्वातीन बन चुकी थी। हंसती बोलती आवाज़ों के साथ वो अंदर आई और मुझे देखकर गले लगा लिया। हाल हवाल पूछा। मेरा दिल इतना भरा हुआ था कि मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने इनसे कहा, मेरा शौहर मुझसे खुश नहीं, वो मुझ पर नाराज़ रहता है, कहता है कि मैं मर्दों जैसा नहीं हूँ। तुम तो जिंदा लाश हो, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, तुम सिर्फ जिस्म हो, दिल कुछ नहीं। वो सब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, जैसे ये बातें सुनकर वो भी हैरान रह गई हो। फिर एक ने हंसते हुए कहा, बेटा ये सबके साथ होता है। मैं चौंक कर पूछ बैठी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारे शौहर भी तुम्हें धमकियां देते हैं, तलाक की बातें करते हैं, या तुम्हें इनकी तलाक बातें सुननी पड़ती हैं? वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी, जैसे मैंने कोई बहुत मासूम और भोलेपन से भरी बात कह दी हो। एक ने फिर हंसते हुए कहा, तौबा करो, ऐसी बातें जबान पर मत लाया करो। हम सब तो बस एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं। असल में हम खुद भी खौफ और दबाव में रहती हैं, बस तुम्हें दिखाने का वक्त और तरीक़ा मुख्तलिफ होता है। मेरे दिल में एक अजीब सा मलाल और हैरत छा गई। मैं समझ गई कि ये सिर्फ मेरा दुख नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सच है जो सबके अंदर छुपा है, मगर सबको इसे ज़बान पर लाने की इजाज़त नहीं। और मैं अपनी खामोशी के साथ इस हकीकत से और भी ज़्यादा अकेली महसूस करने लगी। मैंने हैरानी से पूछा, कैसी एक्टिंग? वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, हम अपने शौहरों के सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हमें हर बात पसंद है, जैसे हम इनकी गुर्बत से खुश हैं, चाहे अंदर से दिल चाहे कि हम रोएं, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी पड़ती है। मैंने चौंक कर कहा, यह तो झूठ है। वो हंसी और नरमी से बोली, हाँ ये झूठ है, मगर इसी झूठ से हमारे घर बचते हैं। हमने सीख लिया है कि मर्दों को वही दिखाना है जो वो देखना चाहते हैं। मर्द ये समझते हैं कि हम इनके लिए सब कुछ महसूस करते हैं, और इसी फरेब से वो मुतमईन रहते हैं। मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई। दिल में एक अजीब सा सुकून और एक गहरी तन्हाई दोनों महसूस हो रहे थे। मुझे यूं लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा तन्हा हूँ, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे इसलिए घर नहीं भेजा था कि मैं सहेलियों से झूठी हंसी और खुशी सीखूं। वो तो 2 दिन बाद ही
मेरे नाम तलाक भिजवा चुके थे। इसी लम्हे मैंने एहसास किया कि मेरा दिल, मेरी जिंदगी सब एक बार फिर टूट चुके हैं। दिल में दर्द का एक गहरा समंदर था और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। माँ के हाथ में एक लिफाफा था। मैंने देखा और दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। वो लिफाफा कुछ ऐसा था जो मेरी जिंदगी की अगली हकीकत खोलने वाला था और मैं जानती थी कि ये लम्हा भी पहले के जख्मों के साथ मिलकर मुझे मजीद बदल देगा। जब माँ ने वो लिफाफा मेरे हाथ में दिया तो जैसे अचानक मेरे सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया हो। दिल धड़कना बंद सा हो गया, जबान जैसे मेरे मुंह में जकड़ गई और अंदर एक सनसनी से दौड़ गई जो मुझे हरकत करने ही ना देती। माँ कुछ कह भी ना सकी, बस खामोशी से बैठकर अपने आंसू पोंछने लगी, जैसे वो भी इस सदमे के बोझ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हो। गांव में जैसे जमीन हिल गई हो। लोग बाहर आने लगे, जब हैरानी और सरगोशियों में मसरूफ थे। कोई पूछ रहा था ये क्या हुआ, कैसी लड़की है जो सिर्फ 2 महीने बाद तलाक ले बैठी। एक औरत ने कान में कहा, मैंने अपनी 15 साल जिंदगी में पहली बार सुना है कि किसी लड़की को इतनी जल्दी तलाक मिल जाए। लोग सरगोशियां करने लगे। कुछ ने कहा, लगता है लड़की में ही कोई खराबी होगी, कोई वजह तो होगी कि शौहर ने इसे छोड़ दिया। हर लफ्ज मेरे दिल पर पत्थरों की तरह बोझ डाल रहा था। मैं इस घर में एक बेवजनी बोझ बन चुकी थी। ये सब बातें, सरगोशियां और नजरें मुझे अंदर से मजीद कुचल रही थी। रात के वक्त मैंने खामोशी से कुछ कपड़े समेटे और बेसदा घर से निकल गई। दिल की धड़कन बेतरतीब थी और आंखों से आंसू जारी थे, मगर दिल के अंदर एक सनसनाहट और खालीपन छा गया था। मैंने खुद से कहा कि वापस नहीं जाना, वापस वही नहीं जहां हर लम्हा मुझे याद दिलाता कि मेरा वजूद किसी के लिए बोझ बन चुका है। ट्रेन स्टेशन पहुंचकर अंधेरे में खड़ी मैं बेयकीनी में डूबी हुई थी। कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी, ना कोई रहनुमाई। बस ये एहसास था कि मुझे शहर की तरफ जाना है। जो भी गाड़ी आए, जिस भी सफ़र का रास्ता खुले, मैं इस पर सवार हो जाऊंगी, चाहे मंजिल कुछ भी हो। आखिरकार एक ट्रेन में बैठ गई। धुंधले रोशनी वाले डिब्बे में मैं खामोश बैठी रही। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल बिल्कुल सुन्न हो चुका था। अंदर का दर्द ऐसा था जैसे हर उम्मीद, हर खुशी और हर एतमाद मुझसे छीन लिया गया हो। बाहर के शोर में लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर मेरे लिए ये सब खामोशी और तन्हाई का आलम था। मैं बस एक अजनबी सफ़र पर थी, अपनी ज़िंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों के साथ, जो शायद कभी दोबारा जड़ ना सके। शहर पहुंचते ही मैं सबसे पहले एक लेडी डॉक्टर के पास गई। दिल की सारी भारी बातें मैंने इसके सामने खुलकर बयान कर दी। अपनी ज़िंदगी के हर छुपे हुए दर्द, हर बेबसी और हर जख्म का हवाल मैंने इससे कहा। लम्हा भर के लिए मुझे लगा जैसे शायद अब कोई वाकई मुझे समझेगा, शायद कोई मेरी हालत को देखकर मेरे अंदर की चीख को महसूस करेगा, जैसे किसी ने मेरे दिल के अंदर बंद दरवाजे का ताला खोल दिया हो। हर दिए हुए लफ्ज, हर दबी हुई चीख बह निकल गई। डॉक्टर मुझे हैरत और हल्की तशवीश के साथ देखती रही। जब मेरी बात खत्म हुई, इसने नरम लहजे में कहा, यह सब कुछ तुम्हारे साथ इसलिए हुआ कि तुम्हारे साथ वह रस्म मनानी गई थी। मेरी आंखों में शर्मिंदगी छा गई, जबान खुश हो गई और मैं धीमी आवाज में बोली, कौन सी रस्म? डॉक्टर ने अफसोस भरी निगाह से जवाब दिया, वही रस्म जो आज भी कई देहातियों में जाहिलियत की अलामत है, जिसमें एक लड़की के जज्बात, इसके जिस्म और इसकी शनाख्त को बिला इजाजत काटा और छीना जाता है। इसने मुझे गौर से देखा और आगे कहा, जो कुछ तुमने सही रखा है वो सिर्फ एक जिस्मानी जख्म नहीं, बल्कि ये खामोशी जहर है जो तुम्हारे अंदर से तुम्हें खा गया है। इसने तुम्हारी खुशी छीन ली, तुम्हारी हंसी छीन ली और वो हक जो हर औरत को फितरतन मिलता है, इससे भी महरूम कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह पैदा हो गई, जैसे कई सालों की तन्हाई, खौफ और दर्द एक लम्हे में मेरे वजूद पर भारी पड़ गए हों। डॉक्टर ने फिर मुझे औरतों की एक सेंटर का बता दिया, जहां मैं अपनी हालात के बारे में खुलकर बात कर सकती, इलाज और मदद हासिल कर सकती थी। इसने कहा, यहाँ तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारे जख्मों को छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तुम्हारे लिए एक नया आगाज़ हो सकता है। मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद जाग गई, जैसे किसी ने अंधेरे में छुपी रोशनी की एक झलक दिखा दी हो। पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैं इस तन्हाई और दर्द के समंदर से बाहर निकल सकती हूँ और एक दिन अपने आप को दोबारा जीने की काबिल पाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, वहाँ जाकर तुम कुछ वक्त गुजारो, खुद को पहचानो, अपनी पहचान वापस लो,
तुम अकेली नहीं हो, ऐसी और भी कई औरतें हैं जो इस जाहिलियत और जुल्म का शिकार हो चुकी हैं। मैं वहां पहुंची और अब वही जिंदगी गुजार रही हूँ। इस सेंटर में हर औरत की अपनी एक अधूरी कहानी है। हर जख्म कुछ ना कुछ कहता है, हर दर्द एक छुपी हुई चीख जैसा महसूस होता है। कुछ दिन बाद मैंने अपने जज्बात एक कागज पर उतारने का फैसला किया। मैंने लिखा कि मेरे शौहर को लगा कि मेरे दिल में किसी और की मोहब्बत है, इसी वजह से वो मुझे कबूल नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी खामोशियों, अपनी बेबसी और अपने छुपे हुए दर्द को भी तहरीर में डाला, ताकि कभी ये याद रह जाए कि जो कुछ मैंने सह लिया वो मेरे हौसले और ताकत का हिस्सा है। लेकिन सच ये था कि मेरे दिल में असल में कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि जो होना चाहिए था वो बहुत पहले छीन लिया गया था। इस रस्म ने मेरी रूह से वो जज्बा छीन लिया था जो किसी रिश्ते को जोड़ता है, किसी लम्स को माने देता है और किसी दिल के धड़कन में खुश भरता है। अब मैं रोज सेंटर में बैठती हूँ, इन औरतों की कहानियां सुनती हूँ, देखती हूँ कि किस तरह कितनी ही लड़कियां इसी रस्म का शिकार हो चुकी हैं।